Assalamualaikum students, welcome back to Evac High School homework series Kids. In today's video, we will complete grammar section of Unit 2, Be Grateful, Allah Loves Me. Alright, so kids, in this video, we will complete page number 21 to page number 24. In part 1, we have completed page number 15 to page number 20. Alright, so if you have not completed your work yet, I am giving you a link over here and you can click on the link, complete your previous work and then get back to page number 21. Alright kids, so exercise number 1 is definite articles. What are definite articles? Read the given sentence and notice the use of definite articles the. Kids, in English grammar, some words are called articles that include the, and, a. So ये आप किन सेंटेंसेस के साथ लगा सकते हैं और नहीं लगा सकते, यहाँ पे हम ये सब पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स रीड फ्रॉम द बिगिनिंग. when we talk about something already known or which has been previously mentioned, जब आप किसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसके मुतल्लिक आपको पहले से मालूम होता है या कहीं वो पहले जिक्र हुआ होता है उस चीज का. फॉर एग्जाम्पल, when you write an essay on my cat, right? So what do you say? I have a cat. Its eyes are blue. Previously mention होता है, वहां पे हम यूज करते हैं the. जैसे I have a parrot. तो यहाँ पे हमें क्या समझ आ गई कि किसकी बात हो रही है? पैरेट की बात हो रही है. The parrot is green. Parrot green कलर का है. The parrot. Okay. Do you know where I left the keys? Keys की बात हो रही है यहाँ पे. So इसलिए यहाँ पे आर्टिकल the यूज हो रहा है. पहला रूल आर्टिकल द का क्या है कि किसी चीज के बारे में हमें पहले से मालूम हो. नेक्स्ट इज वी डिफाइन और आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट. एक पर्टिकुलर चीज के बारे में या एक पर्टिकुलर शख्स के बारे में हम बात करें तब हम द लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, कैन यू सी द बॉय इन द रेड शर्ट? ओके, सो आई इमेजिन दैट there is a boy somewhere standing and he is wearing a red shirt. So when you want to talk about that guy, then you will say, can you see the boy over there? वो लड़का देख रहे हो वहाँ पे जिसने रेड शर्ट पहनी है. ठीक है, तो यहाँ पे you have used the word, the article the. The man who wrote this book is famous. वो आदमी जिसने ये किताब लिखी है वो बहुत मशहूर है. ठीक है, तो सेकंड रूल में हमें क्या समझ आ गया कि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होंगे, तब हम द यूज करेंगे. नेक्स्ट इज रेफर टू पीपल और ऑब्जेक्ट दैट आर यूनिक. आप द तब भी यूज कर सकते हैं जब बात हो रही हो ऐसे लोगों या चीजों की जो कि यूनिक हों, जो कि खास हों. क्लाउड्स ड्रिफ्टेड across the sky. Sky is unique, right? Sky is khas. The sun sets at 7 o'clock in the evening. Sun is also a unique thing. Evening is also a unique thing. Okay? तो इस तरह के जो unique words होते हैं उनके साथ भी article the लगेगा, as we have read. सुपरलेटिव्स बच्चों वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि हायर से लोएस्ट की तरफ जाते हुए हमें पता चले. फॉर एग्जाम्पल, हाईएस्ट, टॉलेस्ट, लार्जेस्ट, उनको इस तरह की जो डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव्स की, उनको हम सुपरलेटिव्स कहते हैं. ओके, तो उनके साथ भी द लगता है. दिस इज द हाईएस्ट बिल्डिंग इन लाहौर. ओके, द हाईएस्ट, हमें यहाँ पे सुपरलेटिव ऑफ एडजेक्टिव्स मिल गया. सुपरलेटिव ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. इनके साथ भी हम आर्टिकल द यूज करते हैं. दिस इज द थर्ड टाइम आई हैव कॉल्ड यू टुडे. ओके, नेक्स्ट इज विद नाउन्स टू रेफर अ होल ग्रुप ऑफ पीपल. विद नाउन्स टू रेफर अ होल ग्रुप ऑफ पीपल. ऐसे नाउन्स के साथ जो कि
ग्रुप ऑफ पीपल जाहिर करें. The giraffe is the tallest animal. Okay. She has given a lot of money to the poor. To the poor, tallest animal. Animal की ये kingdom बता रहे हैं. To the poor. Okay. Sixth rule the use करने का है with the name of rivers, mountain ranges, groups of islands, canals and oceans. Their ship crossed the Atlantic in 3 days. They caught fish from the Ravi. Ravi is river. This is an ocean, right? Hiking across the Himalayas would be difficult. Hiking across the Himalayas would be difficult. Himalayas is the mountain ranges, right? Mountain range है ना Himalayas. Okay, and then is the last rule to use the is with the names of famous buildings, museums, monuments. We went to the Lahore Museum. The Lahore Museum. Lahore Museum is a famous museum. Sarah visited the Faisal Mosque. The Faisal Mosques. Okay, these are the 6 rules through which we can use the article the. Okay, now fill in the blanks. Asia is dash largest continent in the world. Largest is a degree, continent is an ocean. So as we have studied it over here that we use the article the when we are talking about mountain ranges, rivers, group of islands, canals and oceans, right? So you will write over here Asia is the largest continent in the world. My cousin is a doctor या the doctor. My cousin is a doctor. We will further understand about the article A. There is dash orange on the table. There is an orange या a orange. An orange. As you know that we use an with vowel words. Bring me a glass of water. And we use a when there is a consonant. Okay. Sadia is an honest girl या a honest girl. Sadia is an honest girl. And why is that so? इस वर्ड में तो हमारे पास H है तो हम यहाँ पे an क्यों यूज कर रहे हैं? And H is not a vowel. And when H is not a vowel, then why do we use an over here? The answer to your question is कि वो words जो के जिनके अंदर first word consonant होता है लेकिन silent होता है. When you say honest, you don't say honest, right? You say honest. So which means that H is silent. और H के बाद first word कौन सा है जो कि pronounce हो रहा है? Honest. O. Right? So that's why you use an as the article. Okay? So next is she quickly ate dash cake. An cake or the cake? She quickly ate the cake. Alright? Why don't you use an over here? Because there is no silent word in the word cake. Okay? Okay बच्चों ये कुछ practice के साथ चीजें आती हैं and this is the best exercise over here which you can do for your practice. Okay, this is the exercise that I want you to do on your notebooks. So आपने ये वाली जो exercise है इसको अपनी notebooks पे solve करना है. This is a must. Okay kids, so now we know that there are 3 articles, okay? The, an and a. So now we need to use those 3 articles somewhere in each question, okay? We can use one article or if more than one article is required, we can also apply. So, Indus is longest river in Pakistan. Indus is a river, okay? Longest degree.
सो यहाँ पे अगर हम सोचें थोड़ा सा और हम अपने जो रूल्स हमने पढ़े हैं उनको रिविजिट करें तो हमें पता चलेगा कि इंडस इज द रिवर. सो क्या हमें द यूज करना चाहिए? यस, द इंडस इज द लॉन्गेस्ट. लॉन्गेस्ट इज अ डिग्री. ठीक है, डिग्री है ये. डिग्री मीन्स के लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, इस तरह की ये जो चीजें होती हैं, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम डिग्रीज बोलते हैं. ऑलराइट, सो तो क्या हमें पता है कि डिग्रीज के साथ हमें द यूज करना है? यस, सो आवर आंसर विल बी द इंडस इज द लॉन्गेस्ट river in Pakistan. All right. So, egg has oval shape. Egg की oval shape होती है. Now over here you have to use two articles and the is not applied. Okay. So इसका आंसर बनेगा an egg has an oval shape. All right. Now let's move towards question number 3. He lives in house next to ours. He lives in the house next to ours. आप specific बंदे की बात कर रहे हैं और आप एक specific house की बात कर रहे हैं. Okay. So you will use in the house. His father likes to read daily news. His father likes to read the daily news. Okay, this is a newspaper in Pakistan. Okay, और इसका नाम है जैसे डॉन पेपर है, जंग पेपर है, उसी तरह एक डेली न्यूज के नाम से पेपर है. दिस इज द नाउन. तो नाउन के साथ आप द आर्टिकल यूज करेंगे. लास्ट क्वेश्चन इज यू कैन गो एनीवेयर इन डैश वर्ल्ड. यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड इज अ यूनिक थिंग, राइट? You can go anywhere in the world. Now, let's hop on to next exercise, A and with mute consonant letters. इस word को understand कर लेते हैं. What does mute consonant letters means? Mute consonant letters means silent consonants. कॉन्सोनेंट्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि वॉवल्स नहीं होते. और वॉवल्स कौन से वर्ड्स होते हैं? A, E, I, O, U, right? And rest of the alphabets are called consonants. So let's read the question. Read the given sentences and notice the use of A and an with mute consonant letters. Okay. सारा had returned after an hour. सारा एक घंटे के बाद वापस आई. आप यहाँ पे अ क्यों नहीं राइट कर रहे जबकि यहाँ पे एज है? Because age in this hour is silent. So वो वर्ड्स जो कि साइलेंट होंगे और उनके फौरन बाद एक वोवल आएगा, उनके साथ हम an यूज करेंगे. Is it clear? You pronounce it as hour, right? 1 hour, 2 hour, 3 hour, या कुछ लोग इसको hour पढ़ते हैं. ठीक है, 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour. ठीक है, तो you will say an hour. So kids, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यूसुफ इज एन ऑनरेबल सिटीजन. ऑनरेबल के साथ एन क्यों लग रहा है? बिकॉज एच इज साइलेंट एंड ओ इज अ वोवल वर्ड. हिज फादर इज एन ऑनेस्ट बिजनेसमैन. एन इसलिए लग रहा है बिकॉज ऑनेस्ट में सेम इशू. एच इज साइलेंट एंड ओ इज वोवल. He gave him a wrapped gift box. Why are we using A over here? Because W is silent but R is not a vowel word. Okay, my mother bought a wrist watch.
we are using article A because W is silent, but after that W, R is a consonant, right? Bring a knife from the kitchen. Because knife में K is silent and N is not a vowel word, it is a consonant. The teacher has shown the diagram of a knee. इसमें A is silent, इसमें K is silent and N is a consonant. That is why we are using a. Next comes degree of regular adjectives. Okay kids, let's pronounce this adjective word. It is not called adjectives, okay? It is called adjectives. Repeat after me. Adjectives, adjectives, adjectives. Okay, now let's see what are degree of regular adjectives. Read the given degrees of regular adjectives with their sentences. There are 3 degrees: positive degree, comparative degree and superlative degree. Alright kids, so इन डिग्रीज को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले ये जो वर्ड्स हैं हमें इनको अंडरस्टैंड करना है. पॉजिटिव मीन्स मस्बत. Positive means masbat. You can write it over here in Urdu language, masbat. Okay. Next comes comparative. Comparative means अंदाज़न, कि आपको अंदाज़ा हो कि ये चीज़ इससे बड़ी है लेकिन इस चीज़ से छोटी है. इसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं. एंड सुपरलेटिव डिग्री बच्चों, इसका मतलब होता है आला, सबसे अच्छी. ओके, सो ये 3 डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव्स की. पॉजिटिव हमें बताती है कि एक चीज़ छोटी है, बड़ी है, भारी है, पतली है, ठीक है. ये कंपैरेटिव में हमें पता चलता है कि ये एक चीज़ से बड़ी है लेकिन दूसरी चीज़ से छोटी है, एक चीज़ से भारी है लेकिन दूसरी चीज़ से हल्की है, ठीक है. अंदाज़ा होता है हमें. और सुपरलेटिव में बच्चों हमें पता चलता है कि वो चीज़ सबसे अच्छी है या सबसे बड़ी है या सबसे छोटी है या सबसे भारी है या सबसे पतली है. ओके, इस तरह के ये 3 डिग्रीज हैं. अब हम इनके सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं. दिस पैथ इज़ लॉन्ग, ये रास्ता लंबा है. दिस पैथ इज़ लॉन्गर देन दैट, लेकिन ये रास्ता उस रास्ते से ज़्यादा लंबा है. दिस पैथ इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द पैथ्स, ये रास्ता सबसे लंबा है. ओके, तो हमें यहाँ पे पता चला कि एक रास्ता लंबा है, एक रास्ता उससे लंबा है और एक रास्ता सबसे लंबा है. ओके, इसी तरह माई बैग इज़ हैवी, मेरा बैग भारी है. माई बैग इज़ हैवियर देन योर्स, मेरा बैग तुम्हारे बैग से ज़्यादा भारी है. माई बैग इज़ हैवीएस्ट ऑफ ऑल 3 बैग्स, मेरा बैग इन तमाम 3 बैग्स से ज़्यादा भारी है. ठीक है, तो ये जो डिग्रीज हैं ये देखें, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट. ठीक है, इनको हम कहते हैं डिग्री ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स. दिस इज़ अ स्मॉल बॉक्स, दिस इज़ स्मॉलर देन योर्स, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट बॉक्स इन दिस रूम. हर ब्रदर इज़ टॉल, her brother is taller than my brother, her brother is the tallest boy in our class. My house is big, my house is bigger than yours, my house is the biggest in the town. Okay, तो ये जो डिग्रीज आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? ये इनको हम कहते हैं डिग्री ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स. ओके, write the degree of given regular adjective in your notebook and use them in your own sentences. All right, so kids, this is the second exercise that you need to do on your copy. Okay, this exercise will also be done on your notebooks. So आपने क्या करना है? आपने अपनी कॉपी पे ये हेडिंग रखनी है, आपने अपनी कॉपी पे ये हेडिंग राइट करनी है डिग्री ऑफ रेगुलर एडजेक्टिव्स की, और इसके बाद आपने इसी तरह सेक्शंस बना लेने हैं. पहले आपने लिखना है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री.
ओके और इसके बाद आपने लिखना है नंबर 1 लार्ज और फिर इसकी डिग्री लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। ये मैंने आपको यहाँ पे डिग्रीज बता भी दी हैं। और किड्स इसके बाद आपने इनके सेंटेंसेस भी बनाने हैं। ओके तो उसके लिए आप ये करेंगे कि कॉपी पे पहले आप हेडिंग के तौर पे लिखेंगे लार्ज, ओके और उसके बाद आप इसकी 3 टाइप्स मेंशन करेंगे, 1 लार्ज, लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट, राइट। और यहाँ पे एक एक लाइन आप लीव करेंगे और उन लाइंस के अंदर आप इनके सेंटेंसेस राइट करेंगे। इज इट क्लियर? ओके तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड नोटिस द यूज ऑफ कंजंक्शन। तो यहाँ पे हमने पैराग्राफ को पढ़ना है और इसमें जो कंजंक्शंस का यूज है उसको देखते जाना है। सो अली एंड अहमद वर नॉट गोइंग टू स्कूल। अली और अहमद स्कूल नहीं जा रहे थे बिकॉज क्योंकि इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। दे वर प्लेइंग एंड जंपिंग इन देयर रूम। वो खेल रहे थे और कूद रहे थे अपने कमरे में। अली वॉज हंग्री सो ही वेंट टू द किचन। अली को भूख लगी तो वो अपने किचन में गया एंड लुक फॉर समथिंग टू ईट इन द फ्रिज और देखने लगा कुछ खाने के लिए फ्रिज में। ही ओपन्ड द साइड कैबिनेट एंड सॉ डिफरेंट स्नैक्स इन इट। उसने साथ वाली कबर्ड ओपन की और उसमें से कुछ स्नैक्स ढूंढना शुरू कर दिया। ही ग्रैब्ड अ फ्यू एंड आस्क्ड अहमद। उसने कुछ पकड़ लिए और अहमद से पूछा, डू यू लाइक टू टेक चिप्स और बिस्किट? तुम क्या खाना पसंद करोगे, चिप्स या बिस्किट्स? ओके सो बच्चों ये जो वर्ड्स यहाँ पे ऐड ऑन हुए हैं ये स्टोरी को कनेक्ट कर रहे हैं। ओके अली और अहमद स्कूल नहीं जाना चाहते थे, क्यों? क्योंकि बारिश हो रही थी। तो इन 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करने वाला वर्ड कौन सा है? बिकॉज। ऑलराइट तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं, जो कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ते हैं। Now, write sentences using the above conjunction in your notebook. This is another exercise that you will do on your notebooks, जिसमें आप ये जो 1, 2, 3, 4 conjunctions हैं इनको use करते हुए sentences बनाओगे। Let me make one sentence for you. Now, one sentence I will make for you. Okay, I was tired, so I slept early last night. Okay, did you get my point? So ये जो conjunction है so ये मैंने अपने 2 sentences के साथ इस conjunction को add किया है और अपना sentence complete कर लिया है। तो इसी तरह बच्चों आपने 3 more sentences बनाने हैं। Next sentences you will make, all right? Because these videos are to guide you but not to make you lazy, all right? So read the given sentences and notice the use of transitional words. Transitional words कौन से होते हैं? बच्चों आपने याद रखना है कि जिस तरह 3 आर्टिकल्स हमने पढ़े हैं the, and, a, उसी तरह से जो ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं। इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, देयरफॉर, ये 3 वर्ड्स जो हैं वो हम इस स्टेज पे यूज़ करेंगे एज ट्रांजिशनल वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल और फॉर इंस्टेंस इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं मतलब कि इन दोनों का एक ही मतलब होता है।
somewhere you can write for example and somewhere else you can write for instance. Okay, तो इन दोनों का एक ही मतलब होगा. लेकिन जो therefore होता है, therefore means the result. Okay, therefore अब हम इनकी एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं. We eat healthy food. For example, जैसे कि eggs, milk, fruit, vegetables. You should adopt good habits in your life. तुम्हें अपनी ज़िंदगी में अच्छी आदत अपनानी चाहिए. For example, helping others and being kind to others. Okay? तो ये जो for example word है, that is a transitional words. इसने एक thought को दूसरे thought में convert कर दिया है. Okay? Next is for instance. Delight is the opposite of sorrow. For instance, a designer can develop an excellent web page. Therefore, she came first. वो first position पे आई. Therefore, she got admission in a good college. She got admission to a good college. इसलिए उसका admission एक अच्छे college में हो गया. I am sleepy. Therefore, I am going to bed. मैं sleepy हूँ, इस वजह से मैं bed पे जा रही हूँ. Okay? Make 2 sentences using above transitional words in your notebook. 2 sentences बनाने हैं आपने. For example, for instance और therefore को use करते हुए. ओके सो किड्स, ये एक्सरसाइज भी आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करनी है. और इसको सॉल्व आप ऐसे करोगे कि आप पहले हेडिंग मेंशन करेंगे ट्रांजिशनल वर्ड्स की, और उसके बाद आप लिखेंगे इसी तरह से फॉर एग्जांपल, और उसके नीचे उसका सेंटेंस बनाएंगे. लेट मी मेक वन फॉर यू. Many animals live in forest. For example, monkey, lion, and whatever animal you want to add. Okay? इसके बाद आप फॉर इंस्टेंस की हेडिंग मेंशन करेंगे और उसके साथ आप सेंटेंस बनाएंगे. We read many subjects at school. For instance, math, science, English, etc. Right? ओके बच्चों, इनके कुछ वर्ड्स क्योंकि ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज को सॉल्व करना है. देयरफॉर का भी आप एक सेंटेंस बना के उसके साथ ऐड करेंगे. पहले आप हेडिंग मेंशन करेंगे अपनी नोटबुक्स पे और उसके बाद उसका एक सेंटेंस राइट करेंगे. जैसे देयरफॉर का सेंटेंस आप बना सकते हैं, आई स्टडीड हार्ड for the test. Therefore, I got good grades. All right? तो इस तरह के जो sentences होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इस तरह के बच्चों जो words होते हैं, इनको हम कहते हैं transitional words. All right? इस स्टेज पे आपने कितने ट्रांजिशनल वर्ड्स सीख लिए हैं? 3 ट्रांजिशनल वर्ड्स. दोज आर फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस एंड देयरफॉर. लेट्स हेड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज. दिस इज एक्सरसाइज नंबर 5. सर्कल दोज थिंग्स फ्रॉम द गिवन आइटम्स दैट यू नीड फॉर मेकिंग अ कार्ड. कार्ड बनाने के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए, आप उन्हें सर्कल करें. प्लेन पेपर. डू यू रिक्वायर अ प्लेन पेपर टू मेक अ चार्ट? यस यू डू.
So you need to circle it. Do you need a football to make a card? Do you need a football to make a card? I believe no. So इसको आप circle नहीं करेंगे. Colored pencil. Would you require a colored pencil? Yes, you would. And scissors, right? So let's head towards next exercise. Exercise number 4. Use the given picture for writing the procedure of making a card in correct sequence. Okay? Sequence markers are words that organize our writing, such as first, next, then, after that, and finally. We often use sequencers when we give instructions, describe a process, or tell a story. Okay? तो बच्चों आपने वर्ड्स कौन से यूज करने हैं? आपने वर्ड्स यूज करने हैं फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, आफ्टर दैट एंड फाइनली. ओके, सो ये 5 वर्ड्स हैं. यहाँ पे आपके पास 4 पिक्चर्स हैं, तो आपने इनको किसी भी तरह यहाँ पे ऐड करना है और सीक्वेंस बताना है. तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? आई विल स्पीक, ओके, and you can write it down, process it in your heads, and you can make a better story out of it. Okay, so जब हम सीक्वेंस से स्टोरी को राइट करते हैं तो ये 5 वर्ड्स हैं जो हमें यूज़ करना चाहिए. ठीक है, जब हम कोई प्रोसेस बताने लगते हैं, चाय बनाने का प्रोसेस हो गया, खाना बनाने का प्रोसेस हो गया, या इवन कार्ड मेकिंग प्रोसेस हो गया, तो हम इन 5 वर्ड्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक स्टूडेंट बैठा हुआ है जिसके सामने ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो आपको एक कार्ड बनाने के लिए ज़रूरी हैं. ओके, सो यू विल राइट फर्स्ट, वी नीड अ ग्लू, प्लेन पेपर, colored pencils, ribbons, scissors, etc. whatever you want to add. Okay. Next, we will cut the chart. As you can see in this picture, you will cut the chart. Then you will glue the flowers on the card. After that, you will write the name of the person that you want to gift this card. And finally, you will gift this card to the person. That is creative writing. Write any incident of your life when you treated somebody with kindness. अब यहाँ पे आपने क्या करना है, कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट लिखना है जिसमें आपने कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस किया था टू somebody else. ओके, द मेमोरेबल इंसिडेंट. तो यहाँ पे आपने वो इंसिडेंट मेंशन कर देना है. ऑलराइट किड्स, तो यहाँ पे आपने जो स्टोरी बनानी है इसको आपने 4 सेंटेंसेस में फिनिश करना है. ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे आपको एक स्टोरी बना के दिखा देती हूँ. आपने वो स्टोरी नहीं राइट करनी, आपने कोई अपनी स्टोरी लेके आनी है व्हेन आई विल चेक योर वर्क. ओके, तो इसके लिए आपको एक आइडिया देने के लिए मैं यहाँ पे एक स्टोरी बना रही हूँ. ऑलराइट, सो आई सॉ अ न्यू बॉय सिटिंग अलोन एट लंच. मैंने एक लड़के को देखा जो कि लंच के टाइम या जो कि ब्रेक के टाइम अकेला बैठा हुआ था. नेक्स्ट, he looked shy and a little sad. Next sentence will be, I invited him to sit with me and my friends. He smiled and now we play together every day. इसी तरह से आपने कोई अपना एक इंसिडेंट बताना है, मेमोरेबल इंसिडेंट बताना है एक्ट ऑफ काइंडनेस का. राइट? Okay kids, we have completed our grammar exercise of unit number 2, and in the next video we will complete our grammar exercise of unit number 3. Okay, the video will be uploaded soon. Take care. Allah Hafiz. Students, please do subscribe to the channel.